So our next topic is the present continuous tense. What is present continuous tense? I will explain you now. So are you watching the word continuous? Continuous is formed from continue. Continue means jari rehna. Continuous means the action is going on. So let's see a proper definition. First of all, the present continuous tense is used to describe an action that is presently going on at the time of speaking. So present continuous tense tells about the action which is happening right now when we are speaking. कब हो रहा है? जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन हो रहा है, यानी प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो हाउ कैन वी फॉर्म अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? So for that we have to understand the formula of present continuous tense. So let's see the formula of present continuous tense. So here you can see it is written present continuous tense is used to describe a continued or an ongoing action of the present. जो प्रेजेंट समय में हमारी कोई भी गतिविधि जो जारी है, कोई भी ऐसा एक्शन है जो ऑनगोइंग है, दैट विल कम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हाउ कैन वी फॉर्म अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? सो एज यू ऑल नो a sentence is formed from many parts of speech. So सबसे पहले हमारा क्या आता है? subject. Subject can be a noun, subject can be a pronoun. Then आता है हमारा helping verb. After helping verb आता है हमारा main verb and then आता है हमारा object which is not given here. Object भी आता है. Okay, so that is the structure of a sentence. So when we have to form present continuous tense, what we do? First of all we write subject. हम subject लिखते हैं. Then according to the subject we decide which helping verb will be used. Because is am are three helping verbs are there. If we have written a name of a person, that like Ravi, Ravi is. If we have written the subject I, so I am. If we have written the subject we, then we are. Okay, according to the subject we will decide the helping verb. So subject is very important to form a sentence. First of all you know that which is the subject, then according to the subject you will decide your helping verb. Then comes to your main verb. Main verb will be first form of verb plus ing with everything when you are forming a present continuous tense of positive sentence. पॉजिटिव सेंटेंस जब आप फॉर्म कर रहे हैं तब आप उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन. इट इज रिटन ही इज सब्जेक्ट. इट इज रिटन इज इज हेल्पिंग वर्ब. सो अकॉर्डिंग टू ही वी हैव चूजन is. Okay, next is playing. Playing is first form of verb plus ing and then it is object which is not written here. So the structure of present continuous tense will be subject plus helping verb plus verb first form plus ing plus object. Let's see the formation of negative sentence. So negative sentence हमारा कैसे फॉर्म होता है? The same formation will be there, only we have to use not after helping verb. हमें क्या करना है? helping verb के बाद not लगा देना है, because negative sentence में हमारा action नहीं हो रहा है and in positive sentence हमारा action हो रहा है. So he is not playing football. So he is subject, is helping verb, not आ गया, then main verb plus ing and then football is object. He is not playing football. Subject plus is mr plus not plus verb first form plus ing plus object. Okay, let's see the interrogative sentences formula. It is written is he playing football. So when we have to form a sentence हम क्या करते हैं? We start the sentence with the helping verb. जो भी helping verb हमारी use होनी है हम उसके साथ start करते हैं. So for that first of all we have to understand that what is the subject. The subject is he, that's why we have chosen the verb is. अगर हमारा subject होता I, then हम choose करते am. If हमारा subject होता we, then हम choose करते are. So is he playing football? Same formation रहता है आपका. is यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन आपका आ गया सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन फिर आपका आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट. इज ही प्लेइंग फुटबॉल. सो क्या हुआ आपका यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, verb first form plus ing and plus object plus question mark, because question mark is very important when you are forming a interrogative sentence. So how so this is how your continuous tense is being formed. इस तरीके से आपके जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है. पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, is am are प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. So that is your present continuous tense. So let's see more examples of present continuous tense. Here are more examples of present continuous tense which are indicating that the action is in progress at the time of speaking. जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर भी आपका जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में है. So it will be a little confusing for you. When you will understand thoroughly, you will see the video, you will be able to understand. So first we'll talk about positive sentence. In positive sentence the action happens. जो आपकी क्रिया होती है वो क्रिया आपकी होती है, कंटिन्यू रहती है. निगेटिव में आपकी क्रिया नहीं होती है. एंड इन इंट्रोगेटिव यू आस्क अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं. सो फर्स्ट इट इज़ रिटन आई एम स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. इफ़ वी हैव टू चेंज इनटू निगेटिव इट विल बिकम आई एम नॉट स्टार्टिंग. एम के बाद हमने नॉट लगा दिया, नॉट स्टार्टिंग. एंड इफ़ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे. इट विल बिकम एम आई स्टार्टिंग. क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट. Here it is not there but question mark is important. Second it is written you are starting, तुम start कर रहे हो. So with you हम क्या करते हैं, are का use करते हैं. So that's why हमने क्या लिखा, you are starting. Second हमारा हो गया you are not starting. And same if we have to ask a question so we'll start from a helping verb and that is are you starting. Okay, let's see the third one, he is starting. ही की वजह से हमने यहाँ पर इज लगाया है, वह शुरू कर रहा है. व्हेन निगेटिव इट विल बिकम ही इज नॉट स्टार्टिंग. एंड व्हेन इट विल बिकम इंट्रोगेटिव सो हम इज से ही स्टार्ट करेंगे, इज ही स्टार्टिंग. तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया. नेक्स्ट आया हमारा शी इज स्टार्टिंग, वह स्टार्ट कर रही है. शी के साथ भी हम इज लगाते हैं इफ हमें निगेटिव फॉर्म करना है. शी इज नॉट स्टार्टिंग. इफ वी हैव टू फॉर्म इंट्रोगेटिव, इज शी स्टार्टिंग, क्या वो स्टार्ट कर रही है. देन हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. इट इज स्टार्टिंग, यह शुरू होने वाला है. इट इज नॉट स्टार्टिंग, इज इट स्टार्टिंग. यहाँ पे क्वेश्चन हो गया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया. सो ये हो गया आपका आई, यू, ही, शी, इट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. नाउ द सब्जेक्ट इज वी. सो वी क्या है, हमारा प्लूरल है. दैट मीन्स हम इसके साथ लगाएंगे आर. वी आर स्टार्टिंग. एंड इन निगेटिव इट विल बिकम वी आर नॉट स्टार्टिंग. एंड इन इंट्रोगेटिव इट विल बिकम आर वी स्टार्टिंग. नेक्स्ट आता है हमारा यू. यू के साथ हम लगाते हैं आर. सो इट विल बिकम यू आर स्टार्टिंग. सेकेंड इट विल बिकम यू आर नॉट स्टार्टिंग. एंड द इंट्रोगेटिव इट विल बिकम आर यू स्टार्टिंग. एंड द नेक्स्ट इज दे. दे इज ऑल्सो प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज आर विद इट. सो हमारा होगा दे आर स्टार्टिंग, वो शुरू कर रहे हैं. दे आर नॉट स्टार्टिंग, आर दे स्टार्टिंग. सो इस तरीके से आपका जो फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, दैट गोज ऑन. हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्ट करते हैं. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करते हैं. लाइक आई के साथ एम, विद यू आर इज गिवन, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, विद वी हैव यूज्ड आर, विद यू वी हैव यूज्ड आर, विद दे वी हैव यूज्ड आर. सो उसमें हमारा नेगेटिव में सिर्फ इतना चेंज रहता है, हम क्या करते हैं, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी यूज नॉट. एंड इन इंट्रोगेटिव व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब ओनली. हम किसके साथ स्टार्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ. सो दिस इज हाउ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, किया जा रहा है यहाँ पर. एंड हाउ इट गोज ऑन, और इसी तरीके से हाउ इट इज गोज ऑन, इसी तरीके से आपका ये जारी रहता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द टॉपिक, द टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So here it is written present perfect tense ki, it refers to an action that has been completed at a specific time in the past but whose effects are connected to the present. So जो present perfect tense होता है वो आपका start तो होता है, मीन्स जो आपका present perfect tense होता है वो finish हो चुका होता है past में. मीन्स पास्ट में आपका जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, वो आपके प्रेजेंट से कनेक्टेड होते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल. अनु हैज़ फिनिश्ड हर लेसन्स फॉर द डे. अनु ने अपने आज के लिए लेसन फिनिश कर लिए हैं. अब कर तो उसने पहले लिए थे, लेकिन उसके इफेक्ट आज से जुड़े हैं कि लेसन्स कब के थे, आज के थे. द प्रिंसिपल हैज़ फैसिलिटेट द 3 स्टूडेंट्स.
फैसिलिटेट मीन्स होता है बधाई देना, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, फैसिलिटेट किया, कितने स्टूडेंट्स को, 3 स्टूडेंट्स को। किया तो पास्ट में था, लेकिन वो हमें न्यूज़, उसके इफेक्ट्स कब से जुड़े हैं, उसके इफेक्ट्स जुड़े हैं आज से। सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट हाउ कैन वी फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. So here you can see the formulas that are given to form a present perfect tense. How we can form? So first of all, what we do, we use subject, then has and have according to the subject, then we use third form of verb which is also called past participle, जिसको past participle भी कहा जाता है. I is first subject, then have हमने I के साथ use किया, tried is third form and sushi is object, and after past participle आपका object भी use होता है. So क्या हो गया आपका, I have tried सुशी, मैंने क्या ट्राई की, सुशी. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिश, एक प्रकार की डिश होती है. सेकेंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट निगेटिव, तो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, हैज़ एंड हैव के बाद आपका नॉट आ जाता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो हैवेंट हो जाता है एंड हैजेंट हो जाता है. देन आता है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट. सो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी, मैंने सुशी ट्राई नहीं की है. सो क्या किया, सिंपल हमने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दिया. देन आता है आपका इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब. हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. सो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ऑब्जेक्ट हियर इट इज़ नॉट रिटन, बट द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गोज लाइक दिस ओनली, आपका ये भी रहता है. सो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हैव यू ट्राइड सुशी, क्या तुमने सुशी ट्राई की है. ओके. So these are the formulas which is important to learn to form a sentence. So let's see the usage, किस तरीके से हम use करते हैं. Here it is written she has never studied Japanese, उसने कभी भी Japanese नहीं पढ़ी. So ये क्या बता रहा है, to express things you have done in your life. ये बता रहा है कि आपने जो चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं, मीन्स पहले की हैं, बट उसके इफेक्ट्स जो हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं, बट आपने नहीं की हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पर आपने नेवर का यूज़ कर लिया. सेकेंड सेंटेंस इज इट इज़ रिटन, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल हर, कितने समय तुमने उसे ट्राई किया कॉल करने के लिए. सो यहाँ क्या पता चल रहा है, टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, कितनी बार आपने किसी काम को किया है. ओके. थर्ड सेंटेंस इट इज़ रिटन, आई हैव सम बैड न्यूज़, मेरे पास कुछ बुरी खबर है. आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब खो दी. सो यहाँ क्या पता चल रहा है, टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट नाउ. इसमें पता चल रहा है कि रिसेंटली आपने कौन सा एक्शन कंप्लीट किया है विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है. आपने कंप्लीट तो पास्ट में किया है. नेक्स्ट इट इज़ रिटन, आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 और 5 ईयर्स, मैं जेम्स को जानता हूँ कितने साल से, 4 और 5 साल से जानता हूँ. सो यहाँ क्या पता चल रहा है, टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल ट्रू. सो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बता रहा है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुई थी लेकिन आज भी वो सच है. मैं जेम्स को पिछले 4-5 साल से जानता हूँ बट अभी भी जानता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस इट इज़ रिटन, आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक, मैंने आधी किताब पढ़ ली है. सो हेयर वॉट इट इज़ टेलिंग, टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शंस और सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस जो अनफिनिश्ड हैं, आपने पास्ट में स्टार्ट की हैं लेकिन आपने उसे पूरा नहीं किया है. मैंने आधी पढ़ी है. नेक्स्ट इट इज़ रिटन, जॉन हैज़ मिस्ड द बस सो ही विल बी लेट, जॉन ने क्या कर दिया, मिस कर दी है बस, तो वो लेट हो जाएगा. यहाँ क्या पता चल रहा है, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट रिजल्ट यानी आज के जो परिणाम हैं जो वो पता चल रहे हैं. सो लाइक दिस ओनली योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ फॉर्म्ड, किया गया है यहाँ पर फॉर्म, एंड लाइक दिस ओनली यू विल फॉर्म, इसी तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं. आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड ऑफ पॉजिटिव टेंस, ऑफ नेगेटिव एंड ऑफ इंट्रोगेटिव, एंड इसके अलावा आपको यूजेज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो लेट्स सी. So our next topic is present perfect continuous tense. So as you all can see by the name only, it is a mixture of perfect plus continuous. Perfect means verb हो चुका है and continuous means जारी है. So in this one sentence the verb has been already finished and still continue also. But how it happens, let's see in the definition.
Here it is written, it shows an action that started in the past but still going on. एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था एंड स्टिल गोइंग ऑन बट फ्यूचर में अभी भी जारी है. सो दैट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूज. स्टार्ट परफेक्ट यानी जो एक्शन शुरू किया गया था वो पास्ट में शुरू किया गया था लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. हेयर इट इज़ रिटन, आर टीचर हैज़ बिन टेकिंग द क्लास सिंस 10 AM. हमारी जो टीचर है वो 10 बजे से क्लास ले रही है. सो लेट मी टेल यू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दैट टेल्स अबाउट द टाइम पीरियड. वो एक टाइम पीरियड के बारे में बताता है बिकॉज इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द पास्ट बट इन स्टिल प्रेजेंट इट इज़ गोइंग ऑन. सो दैट मीन्स एक पूरा टाइम पीरियड बीता है. सो टू टेल द डेफिनेट टाइम वी यूज़ सिंस. जो हमें एक निश्चित समय बताना होता है उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनिश्चित इंडेफिनिट टाइम देन वी यूज़ फॉर. सो यहाँ लिखा है हमारी टीचर जो है वो सुबह 10 बजे से क्लास ले रही हैं. मतलब स्टार्ट उन्होंने 10 बजे लेना स्टार्ट किया था बट फ्रॉम 10 AM शी इज़ टेकिंग राइट नाउ ऑल्सो. सो एक्शन हमारा स्टार्ट हुआ पास्ट में बट इन प्रेजेंट इट इज स्टिल गोइंग ऑन. Second, here it is written, the cats have been mewing for the last 1 hour. जो cats हैं वो पिछले 1 घंटे से म्यूइंग यानी अपना साउंड निकाल रही है. म्यू इज़ अ साउंड ऑफ अ कैट, सभी को पता होगा म्याऊ इन हिंदी वी से एंड इन इंग्लिश द साउंड इज कॉल्ड म्यूज. सो म्यूइंग. सो जो कैट्स हैं वो पिछले 1 घंटे से म्यू कर रही हैं, साउंड निकाल रही हैं. सो हेयर इट इज़ रिटन आर. सो हमने इसके साथ फॉर का यूज़ किया है. जब हमें इंडेफिनिट टाइम का होता है तब हम उसके साथ फॉर का यूज़ करते हैं. सो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो लेट्स सी द फॉर्मूला. So as you all can see, the formation of present perfect continuous tense, for that what we have to do, we have to use first of all subject and after subject has and have, because perfect tense है तो has और have का helping verb रहेगा. then हम use करेंगे been. after been verb first form plus ing and then plus object which is not written here. सो हमारा फॉर्मेशन रहता है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी द एग्जांपल. दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. सो एज आई टोल्ड यू कि ये आपका टाइम पीरियड बताता है. दे हैव बीन, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई. लर्निंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं. कब से सीख रहे हैं, फॉर 2 years. पिछले 2 सालों से सीख रहे हैं, मीन्स 2 साल पहले उन्होंने स्टार्ट की थी बट स्टिल वो सीख रहे हैं. So that is positive formation of a sentence. The formation of a positive sentence. Let's see the second one, that is negative. So negative में we just have to use not after has and have. So हमें क्या करना है, सिर्फ has और have के बाद not लगा देना है. So here it is written, they have not been learning English for 2 years. Means पिछले 2 साल से वो English नहीं सीख रहे हैं. Okay, subject, helping verb not, then been, first form of verb plus ing and then object. Now see the next one which is interrogative. And in interrogative what we have to do, we have to start with the helping verb but we don't start with have been. हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम have लिखते हैं, then हमारा subject आता है, have and has according to the subject, then हमारा subject आ जाता है, then been आता है हमारा. Okay, has, have, subject, been plus verb first form plus ing plus object and plus question mark. So here the sentence is written, have they been learning English for 2 years. क्या वो पिछले 2 सालों से English सीख रहे हैं. Okay, so that is the formation of present perfect continuous tense. To form a present perfect continuous tense, you have to learn the formulas very properly, then only you would be able to form. So let's see the usage. Here it is written, I have been living in Ireland for almost 4 years. मैं पिछले 4 सालों से आयरलैंड में रह रहा हूँ. तो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ. एक ऐसे एक्शन को बता रहा है जो स्टार्ट किया गया था पास्ट में लेकिन आज भी कंटिन्यू है, यानी मैं पिछले 4 साल पहले रहने के लिए गया था बट आई एम स्टिल लिविंग देयर. सेकेंड इट इज़ रिटन, हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग. उसकी आंखें लाल हो गई हैं क्योंकि वो पूरी रात रोती रही है. सो हेयर व्हाट इट इज शोइंग, एक्सप्रेस रीसेंट एक्शन दैट हैव क्लियर एविडेंस और रिजल्ट नाउ. ऐसे एक्शंस को दिखा रहा है जिसके क्लियर रिजल्ट हैं. रिजल्ट क्या है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं. ओके, नेक्स्ट इज हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक. क्या वो इस हफ्ते अंग्रेजी सीखेंगे. सो व्हाट इट इज शोइंग, टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्टर मोर टेम्पररी सिचुएशन. यानी एक ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जा रहा है जो टेम्पररी है,
यानी शॉर्टर, छोटे समय के लिए है। इंग्लिश क्या तुमने इस हफ्ते सीखी। Okay, so this is the formation of present perfect continuous tense. I have explained everything about tense. I have told you what is tense. I have told you types of tense. I have explained the forms of each tense. I have explained all the definition of present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. I have explained the formation of each sentence. I have explained the examples of each sentence. So I hope everyone have understood the lesson that is about the present tense. So सभी को समझ में आया होगा. If you are listening the video, if you are watching the video, then mention your name in the comment by writing present ma'am. So I will be able to understand that how many students are watching my video and how many students are getting my explanation. Okay, so I'll meet you in the another explanation video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.